before starting for the photosynthesis process, one thing I want to clear that we have to talk about the photosynthesis in higher plants only. We are not going to discuss regarding the photosynthesis in lower organisms like blue-green algae, bacteria and so on. So we shall talk only and only about the photosynthesis process that is taking place in the higher plants. So before starting for the process, we shall talk about the definition. What is the definition of photosynthesis? Is actually an intracellular. Intra means inside, cellular. It is the process that is taking place inside the cell. Where this process is actually taking place? In the chloroplast. Chloroplast is a green colored plastid about which we shall discuss later. But first of all, it's an intracellular process because this process is taking place inside the cell. Then secondly, it is an anabolic process. What is anabolic process? It is the process in which the food material is synthesized. That means something is synthesized there. Such type of process is called anabolic process. In this anabolic process, the complex organic food materials are synthesized. Which are complex organic food materials? The glucose. These are synthesized from the simple inorganic materials like H2O and CO2 with the release of oxygen as a byproduct. So it is an intracellular anabolic process in which complex organic food materials like glucose are synthesized from simple inorganic substances like CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll with the release of oxygen as a byproduct. Now let's see the overall reaction of this process. In the overall reaction, the raw materials for the purpose of photosynthesis, these are the carbon dioxide and water. Sometimes chlorophyll and sunlight are also considered to be the raw materials for this process. So 6 CO2 plus 12 H2O in presence of chlorophyll and sunlight, it results in the formation of this glucose, water and oxygen. Here oxygen is a byproduct. So 6 CO2 plus 12 H2O in presence of chlorophyll and sunlight with the formation of glucose and water and oxygen as a byproduct, it is released. It is the overall reaction. Actually, photosynthesis is not a single step process. It is a process, multi-step process. But all these steps are summarized in this equation. So actually, about every step we shall discuss later on in detail. But before this, we shall discuss about the overall reaction 6CO2 12H2. Now, certain characteristics of the certain points regarding the process of photosynthesis are. Which are they? First one, the raw materials. As I told you, main raw materials for the process of photosynthesis are carbon dioxide and water. But sometimes you can say that sunlight and chlorophyll, they can also be the raw materials. Here one thing should be noted that photosynthesis can occur in any light, but the intensity of light is important, especially the intensity of the sunlight is more, and that is why more and more photosynthesis can occur in sunlight. Second point is that the main product of this process is the glucose, while the oxygen is a byproduct. So this oxygen that is released during the process of photosynthesis is of utmost important for the respiration process of all the organisms on the earth. Next is during this process of the photosynthesis, sunlight, that means the solar energy, is converted into chemical energy. Solar energy into chemical energy, that means you can say that the light energy is converted into chemical energy. Next one, it is a redox reaction.
photosynthesis is a redox reaction. What is about redox now? You know very well. A redox, it includes the reduction and oxidation both. Reduction and oxidation both. So called as a redox reaction. Here, what is reduced and what is oxidized? Here, CO2 is reduced and H2O is oxidized. CO2 is reduced and H2O is oxidized. How? This carbon dioxide, during the process of photosynthesis, this H2O splits up there into H and O. This H combines with carbon dioxide to form the glucose, and this O is released as a byproduct, and that is why it is a redox reaction. This is the overall view about the process of photosynthesis. Now we shall have a quick review. Photosynthesis in higher plant, first of all the definition. This definition, photosynthesis is an intracellular anabolic process in which the complex food materials are synthesized from the simple one like CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll with the release of oxygen as a byproduct. Next, the overall reaction or equation, 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight to form the glucose, water and oxygen as a byproduct. Then carbon dioxide and H2O are mainly the raw materials for the process of photosynthesis, but sunlight and chlorophyll are also considered to be the raw materials. The main product that is formed in this process is glucose, oxygen is a byproduct, and during the process of photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. It is a redox reaction where the CO2 is reduced and H2O is oxidized. That is all about the first part, that is the introductory part of the photosynthesis. Now we shall talk about the types of organisms. Depending upon their nutrition, organisms are classified into two categories. First of all, first type of the organisms are called as the autotrophs. What are autotrophs? Here, autos means self and trophos means feeder. Autotrophs are those organisms which are self-feeders. That means they can synthesize their own food material. So they are called as the autotrophs. These autotrophs, whether are using the light energy for the synthesis of their food material or not, are classified into two categories. First of all, called as the photoautotrophs, and next one are called as the chemoautotrophs. What are photoautotrophs? Photos means light. These are the autotrophic organisms that are using the light energy for the synthesis of their own food material. These are called as photoautotrophs. And chemoautotrophs are those organisms which are not using light energy. chemoautotrophs हे light energy वापरणार नाही, photoautotrophs हे light energy वापरणार आहे. मग जर chemoautotrophs, अगर chemoautotrophs light energy यूज नहीं करते तो क्या करते फिर? सो अलग-अलग प्रकार के रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके खुद का फूड मटेरियल तैयार करते हैं. सो chemoautotrophs and photoautotrophs. Now we shall talk about the examples. Photoautotrophs. First of all plants, all the plants right from algae to angiosperm, all plants are photoautotrophs. Then blue-green algae, these are the cyanobacteria, you call them as, these are the photoautotrophs. Then green sulfur bacteria, photosynthetic bacteria. Green sulfur bacteria, these are called as the chlorobium. Chloros means
green. Then next one are called as the purple sulfur bacteria. Then purple non-sulfur bacteria. Purple sulfur bacteria are called as the chromatium, and purple non-sulfur bacteria rhodospirillum. Then rhodopseudomonas. हे जे सगळे बॅक्टेरिया आणि हे जे सगळे प्लांट्स आहेत, these are called as photoautotrophs. Now about the chemoautotrophs. Chemoautotrophs म्हणजे काय? The organisms that are synthesizing their own food material but not using light energy. जे स्वतःचं फूड मटेरियल तयार करतील पण लाईट एनर्जी नाही वापरणार, बाकीचे रिएक्शन्स मधून रिलीज होणारे एनर्जी वगैरे वापरतील. सो chemoautotrophs. Chemoautotrophs, the examples of the chemoautotrophs are, various examples are there. First of all, iron bacteria, then sulfur bacteria, iron bacteria, sulfur bacteria, then nitrifying bacteria, etc. Many examples can be given. Now, this iron bacteria are called as a ferrobacillus. Ferrous means iron. Ferrobacillus. Bacillus means rod shaped. Then sulfur bacteria, these are called as the thiobacillus. Then nitrifying bacteria are nitrobacter and nitrosomonas. हे सगळे बॅक्टेरिया नायट्रोजन फिक्सेशन करणार आहेत. त्या प्रोसेस मध्ये आपण पाहिले होते मिनरल न्यूट्रिशन या चॅप्टर मध्ये. नायट्रिफाइंग बॅक्टेरिया, देन मीथेन बॅक्टेरिया, द बॅक्टेरिया that can produce the methane, Methanococcus. Here coccus means circular type of the bacteria are there. Then this is all about the autotroph. The second type of the organisms are called as a heterotroph. चला आपण परपोषी म्हणतो. Heterotrophs. Heteros means different, and trophos means feeder. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं. दूसरों पर मतलब स्पेशली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं. सो heterotrophs are classified into three categories. First of all, called as the parasites. Second one are called as the saprophytes, and third one are called as the holozoic. Parasites are those organisms which depend upon especially living organisms for their food material. Example, leech is an animal parasite, Cuscuta is a plant parasite. Then saprophytes are those organisms which are dependent on other organisms, especially dead and decaying organisms. Saprophytes में क्या आएगा? बहुत सारे फंगाई आएंगे, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी वहाँ पर आते हैं. And holozoic में, holozoic मतलब ऐसे organism, these organisms are having a complete system of the digestion, it's alimentary canal, including human. सभी प्रकार के एनिमल्स इसमें आते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ये होता है holozoic mode of nutrition. This is about the types of organisms depending upon their nutrition. Now, after this, we shall talk about the next point. That point will be types of photosynthesis. Types of photosynthesis.
मैं एग्जांपल से ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि इसका यूज अभी होने वाला है हमें। हाँ, आप बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस है, इट कैन सिंथेसाइज द फूड मटेरियल, सो व्हाट विल बी द काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके टाइप्स कौन से होंगे? फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स हैं बेसिकली। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, लेकिन हर एक टाइप के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता देखेंगे हम। फोटोसिंथेसिस इज ऑफ द टू टाइप। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, सेकंड वन इज द अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक या ऐसा फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस हमने एट द स्टार्टिंग में देखी। पर अनऑक्सीजनिक ऐसा फोटोसिंथेसिस है जिसमें ग्लूकोज तो तैयार होता है लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं तैयार होता, तो इसमें बाय प्रोडक्ट सल्फर या अदर कुछ वहां पर तैयार होता है, स्पेशली सल्फर। सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिस ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन का जो सोर्स है, दिस इज द वाटर। अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर कोई भी जो सोर्स है वो यहाँ पर यूज करते हैं। अभी इसमें व्हाट इज द नीड ऑफ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा फोटोसिंथेसिस ये रेडॉक्स रिएक्शन है, सो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो रिडक्शन किसका होता है? CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर एक तो H2O यूज किया जाता है या फिर H2S। अगर H2O यूज किया जाता है तो H2O को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट। अगर H2S यूज होता है तो इसको ब्रेक करके हाइड्रोजन CO2 के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज तैयार करेगा और ये जो सल्फर है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव होगा। सो ऑक्सीजनिक इज द फोटोसिंथेसिस व्हिच इज ऑकरिंग in which the water is used as a source of hydrogen, while unoxygenic photosynthesis में H2S is the source of hydrogen. So all green plants and blue green algae, these are the source of the oxygenic photosynthesis. Blue green algae ये प्रोकैरियोट्स है, फिर भी वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। So it is an oxygen releasing organism. So ऐसे मानते हैं कि पहला ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी में ही हुआ है। सेकेंडली ये बाकी के जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ऑल दिस बैक्टीरिया यूज द हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया पूरा टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक टाइप का फोटोसिंथेसिस। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। Now we shall talk about the early experiments. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऐसी होती है, वैसी होती है, सो ऑन। नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड भी जो बातें हैं उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। जोसेफ प्रिस्टले ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। नाउ हाउ डिड ही डिस्कवर ऑक्सीजन? ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ बेल जार, माउस, mint plant
ये यहाँ पर इन्होंने यूज किया था। इन्होंने क्या किया कि एक बेल जार ली, बेल जार, ये बेल जार है, इस बेल जार में ये बर्निंग कैंडल रख दी, बर्निंग कैंडल। तो कुछ देर के बाद वो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। उसके साथ साथ इसमें माउस भी रखा था इन्होंने, माउस। तो ये माउस उसकी डेथ हो गई कुछ देर के बाद। अभी हमें कैसे पता चला कि ये जो बेल जार है, इस बेल जार के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा? दैट इज व्हाई द कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड एंड माउस वाज डाइड। तो वहां पर इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ तो भी है जो बर्निंग कैंडल और ये रेस्पिरेशन करने वाला माउस उस एयर से निकाल देते हैं। The air that is present in बेल जार, उस एयर को फाउल करते हैं, कुछ तो भी हार्म करते हैं बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस। कुछ तो भी एक्स पता नहीं था क्या है। एक्चुअली आज के डेट को हमें पता है ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दूसरा बर्निंग कैंडल रख दी, बर्निंग कैंडल। उसके बाद उसी बेल जार में एक मिंट का प्लांट रखा है, मिंट का प्लांट, और यहाँ पर माउस रखा। तो ऐसे पता चला कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैंडल वाज बर्निंग एंड माउस वाज आल्सो अलाइव। द क्वेश्चन वाज देयर, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर बिकॉज़ ऑफ दैट मिंट प्लांट। सो ये मिंट प्लांट जो है, इन्होंने ऐसा इसमें से इन्फरेंस निकाला कि मिंट प्लांट इज रिस्टोरिंग दैट समथिंग दैट इज टेकन और यूटिलाइज्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड द माउस, ब्रीदिंग माउस। सो ये कुछ तो भी क्या था पता नहीं था, बाद में पता चला वो ऑक्सीजन है। ये प्रूव करता है, जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करता है कि प्लांट्स कुछ वो सब रिस्टोर करते हैं जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस, मतलब ब्रीदिंग एनिमल जो है वो एयर से निकाल लेते हैं, वो ये फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स वापस रिस्टोर करते हैं। दैट समथिंग वाज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्ले। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जैन इंजिनहाउस, इनका एक्सपेरिमेंट है दूसरा। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने कुछ एक्वेटिक प्लांट लिए, जैसे हाइड्रिला वगैरह है एक्वेटिक प्लांट, और इन्होंने ये बात प्रूव की कि दिस एक्वेटिक प्लांट्स कैन प्यूरिफाई एयर, मींस कैन गिव ऑक्सीजन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होता तो ये प्लांट्स ये एयर को प्यूरिफाई नहीं करेंगे। एयर को मतलब जहां पर भी है वो एक्वेटिक प्लांट है, तो वाटर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। ऑक्सीजन रिलीज टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये कहा। दूसरी बात, he also observed that only green parts of the plants can give up the bubbles of oxygen। जब इन्होंने ये बीकर वगैरह ऐसे में ये हाइड्रिला का प्लांट लिया था, हाइड्रिला का प्लांट ये सर था, हाइड्रिला का प्लांट यहाँ पर लिया था, तो पता चला कि ये जो हाइड्रिला है ये ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज करती है। आपने देखा होगा स्पेशली डे टाइम में किसी भी प्रकार का जो पॉन्ड होता है जहाँ पर पानी स्टैग्नेंट वाटर वगैरह है, और वहाँ पर अगर प्लांट है तो उसमें बबल्स निकलते हैं डे टाइम में, डिड बबल्स, एक्चुअली ऑक्सीजन के बबल्स। सो ये जो प्लांट्स है, दिस प्लांट्स कैन गिव आउट द ऑक्सीजन, दे कैन प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड वन थिंग, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन प्रोड्यूस लाइट। प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ही लाइट प्रोड्यूस कर सकते, सॉरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे पार्ट नहीं। ये हो गया सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन्होंने क्या किया, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जॉन इंजिनहाउस इनके एक्सपेरिमेंट में जैसे बताया गया था कि
ऑक्सीजन इज रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट। इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था जूलियस वॉन सैक्स ने कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट के जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे कैन रिलीज द ऑक्सीजन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन इन्होंने क्या किया? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने इन्होंने एक ग्रीन अलगा यूज किया, उसका नाम है क्लैडोफोरा। ये ग्रीन अलगा है। इन्होंने क्या किया? पहले एक प्रिज्म लिया, दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म के इधर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट, और यहां पर ऐसे एक बीकर रख, बोलिए जो कुछ भी बोलिए, ये रख, इसमें ये सी निकालो, मैंने सी फॉर क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि यहां पर ये जो रेड कलर के डॉट्स मैंने दिखाए हैं, दिस रेड कलर डॉट्स आर एक्चुअली द एरोबिक बैक्टीरिया। अभी एरोबिक बैक्टीरिया मींस this bacteria can accumulate in that region where there is a presence of oxygen, more and more oxygen। जहां कहीं पर भी जिस किसी भी रीजन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी रीजन में ये वहां पर प्रेजेंट है। तो क्या किया? सोर्स ऑफ लाइट से जब ये लाइट निकला, प्रिज्म से पास हुआ, तो आपको पता है विबग्योर, तो ये जो है VIBGYOR, विबग्योर, ये जो है लाइट, स्प्लिट लाइट जिसको आप कहते हो, लाइट को स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ था। पर उनको पता चला कि इन ये जो 7 कलर के लाइट है, इसमें से जो ब्लू कलर का रीजन है और रेड कलर का रीजन है, ब्लू एंड रेड कलर का, उस रीजन में ये जो बैक्टीरिया है ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हुए हैं। इसका मतलब ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट इज व्हाई मोर एंड मोर बैक्टीरिया आर एक्यूमुलेटेड देयर। ये क्या था? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन इनके द्वारा। दैट इज ऑल अबाउट द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी now we are going to discuss about such type of experiments which are useful to prove that which type of materials are used for the photosynthesis। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने वाले एक्सपेरिमेंट अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अभी क्या देखेंगे? पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फर्स्ट, पहले एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है टू शो क्लोरोफिल is necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद उसके लिए क्या क्या लगने वाला है? रिक्वायरमेंट्स। बाकी के रिक्वायरमेंट्स तो बहुत है, लेकिन सबसे अहम रिक्वायरमेंट है अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स।
वैरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है ये ऐसा लीफ है जिस लीफ पर ग्रीन पैचेस होते हैं, दूसरे कलर के पैचेस भी होते हैं, ऐसे कुछ रेड कलर के पैचेस होंगे, ऐसे ऐसा वैरीगेटेड लीफ वाला, जैसे कि गार्डन क्रॉटन, एग्जाम्पल गार्डन क्रॉटन नाम का जो प्लांट है, गार्डन क्रॉटन का, we have to take this plant because the leaves of garden क्रॉटन plants are showing the patches of the various colors. ये अलग अलग कलर के पैचेस का मतलब होता है इनमें अलग अलग प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। और आपको पता है क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो जहां कहीं पर भी ग्रीन पैचेस है वहां पर ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रूव करना है। अभी प्रोसीजर में क्या करेंगे, पहले इस प्लांट को डीस्टार्च करेंगे। पहले एक पॉटेड पॉट में लगाया हुआ एक वैरीगेटेड लीफ वाला गार्डन क्रॉटन का प्लांट लिया, डीस्टार्च कर दिया। डीस्टार्च करना है मतलब उसको 24 आवर के लिए, 2-3 दिन के लिए डार्क में रखो। किस लिए कि द ग्लूकोज दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स वुड बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड देयर। ना उसके बाद उसको उठा, बाद में सनलाइट में रखो, 7-8 घंटे के लिए सनलाइट में रखो। 7-8 घंटे सनलाइट मिल गया, उसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा एंड ग्लूकोज वहां पर तैयार होगा। बाद में उस प्लांट का एक लीफ प्लग करो, लीफ तोड़ दो। उस लीफ को अभी आपको उस लीफ को क्या करना है, उस लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डालना। बॉइलिंग वाटर में इसलिए डालना है क्योंकि उसके सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स निकल जाए। दूसरा, फिर उससे निकालकर अल्कोहल में डालना है, उसके बाद उसको वॉश करना है पानी से एंड बाद में उस लीफ पर आपको आयोडीन डालना है। आयोडीन, यू नो आयोडीन विथ स्टार्च गिव्स ब्लू कलर। इसका मतलब जहां कहीं पर भी इस लीफ पर ब्लू कलर आएगा उस पार्ट में सिर्फ वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च वहां पर सिंथेसाइज हुआ है, ये प्रूव। सो एक बात यहां पर है कि वेयर देयर प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पैचेस, जहां कहीं पर भी यहां पर ग्रीन पैचेस थे उसी पार्ट पर जब आयोडीन डाल दिया गया तब उसी पार्ट में ब्लू कलर आया, बाकी के पार्ट में। इसका मतलब जहां पर ग्रीन पैचेस थे वहां पर स्टार्च तैयार हुआ फोटोसिंथेसिस से एंड वहां पर ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस कैन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन पैचेस थे वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था एंड दिस क्लोरोफिल वाज सिंथेसाइजिंग द फूड मटेरियल। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, देखिए। एक्सपेरिमेंट सेकंड, दूसरा बताता है टू शो लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट नेसेसरी है, ये देखना है। सो लाइट इज अल्टीमेटली नेसेसरी, यू नो वेरी वेल, बट वी हैव टू प्रूव हियर दैट लाइट इज नेसेसरी। उसके लिए आपको प्लांट ये कुछ लेना है। एक बात है यहाँ पर, गैनॉन्स लाइट स्क्रीन रिक्वायरमेंट में ये सबसे अहम, गैनॉन्स लाइट स्क्रीन। गैनॉन्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who invented the light screen. This is just a black colored paper with a star in the center. ये लाइट स्क्रीन मतलब क्या है, ये ब्लैक कलर के पेपर की ऐसी पट्टी है जिसके सेंटर में ऐसे स्टार बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे स्टार बनाया गया है। So it Ganon's light screen. This Ganon's light screen now and the plant that is to be taken here, ये plant बड़े-बड़े थोड़े से लीव्स वाला होना चाहिए, ये बड़े लीव्स वाला है। पहले प्लांट को क्या किया, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज उसको 24 आवर या 2 दिन के लिए डार्क में रख दिया, डिस्चार्ज हो गया। बाद में उस प्लांट को वापस उठा के सनलाइट में रख दिया। रखने से पहले
उसके एक लीफ को ये गैन स्लाइड स्क्रीन लगा दिया, ये गैन स्लाइड स्क्रीन जिसके सेंटर में ऐसा स्टार है, तो और यहाँ पर लगा दिया ऐसे पिलर दोनों तरफ से, मतलब ऊपर से और नीचे से भी ये गैन स्क्रीन लगा दिया। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले गैन स्क्रीन रखो, एक वो ब्लैक पेपर रखो, उसके ऊपर स्लाइड रखो, ग्लास स्लाइड छोटे से ऊपर से नीचे से, और ये उसको पेन लगा दो बस। नाउ when this plant was put in sunlight for 7 to 8 hours, सनलाइट में रख दिया, बाद में क्या क्या गैन स्क्रीन निकाल दो। बाद में एक बात मैं यहाँ पर पहले क्लियर करूंगा कि इस तार को छोड़ के ये जो बाकी का पार्ट है ना, ये पूरा ब्लैक कलर का पार्ट है, ये मतलब इस पार्ट से the leaf is not getting sunlight, ये बाकी का पार्ट ब्लैक कलर का है। तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड 7 to 8 आवर्स के बाद लीफ को प्लग कर दो, लीफ को फिर से गैन स्क्रीन निकाल दो, गैन स्क्रीन निकाल दो। बाद में क्या करना है? आफ्टर रिमूविंग द गैन स्क्रीन, उस लीफ को पानी में उबालो, बॉइलिंग वाटर, देन प्लेस इन अल्कोहल, वॉश विद वाटर एंड देन put some drops of few drops of iodine. It will be noticed that जहां कहीं पर भी ये लाइट स्क्रीन का स्टार वाला पार्ट था, उसी पार्ट, ये स्टार वाला पार्ट ब्लू कलर दिखाएगा। ऑफ कोर्स ये भी ब्लू कलर दिखाएगा, स्टार वाला पार्ट ब्लू कलर दिखाएगा, लेकिन where there was a light screen, वो पार्ट किसी भी प्रकार का ब्लू कलर नहीं दिखाएगा। ब्लू कलर क्यों दिखाएगा? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। सो इट प्रूव्स दैट इस ये जो स्टार शेप स्ट्रक्चर है उसमें से उसको लाइट मिला था, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ और ये स्टार के साथ ब्लू कलर आ गया। दिस प्रूव्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस